ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بارش جیسے آسمان سے قہر برسا رہی تھی۔ کمرے کے باہر درختوں کی شاخیں تیز ہواؤں سے چیخ رہی تھی۔ بادل گرج رہے تھے اور بجلی کی چمک پر تھوڑی دیر بعد پورے آسمان کو چیر کر زمین کو ہلا دیتی تھی۔ ایسے میں وہ معصوم لڑکی دلہن کا لباس پہنے کھڑکی کے قریب سمٹی بیٹھی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر یوں پڑ رہی تھی جیسے کوئی آسمان سے آ کر فریاد کر رہا تھا، یا شاید وہ اس معصوم بے قصور کی حالت پر خود آسمان بھی رو رہا تھا۔ کمرے کا ماحول بھی باہر کے ماحول سے مختلف نہیں تھا۔ کمرے کی فضا بھی بوجھل تھی، اندھیرے اور نمی سے بھری ہوئی۔ پورے کمرے میں ایک وحشی سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے وقت تھم چکا تھا، جیسے در و دیوار اس بے قصور کی خاموش چیخیں سن کر سن ہو گئے تھے۔ اور تبھی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ شازیب اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی اس معصوم نے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اب چھپنے کی کوشش نہ کرو، اس کی آواز میں غرور اور تھا۔ اب تو جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ پورا ہوگا، تمہارے چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس معصوم کا دل ایک بار پھر حلق میں آ گیا۔ اس نے دیوار سے پیٹھ لگا لی، جیسے وہیں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ خدا کے لیے نہیں! اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، خالی پن تھا۔ شاید اس کی چیخیں، اس کے آنسو اور اس کی روح سب ہی کہیں دفن ہو چکے تھے۔ مگر جیسے ہی شازیب نے دروازہ بند کیا، ہوا کا شور اور بارش کی آواز بھی ایک دم سے بند ہو گئی۔ لیکن اندر کی خاموشی تو باہر سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے لرز رہی تھی۔ وہ شازیب سے فاصلے پر کھڑی اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ وہ 18 برس کی ایک معصوم سی لڑکی تھی، جس کے بچپن کو ایک فیصلے کی کوٹھڑی میں دفنا دیا گیا تھا۔ شازیب اس کی طرف بڑھا، اس کے وجود پر اپنی طاقت کی چادر تانتا۔ ڈر ہی کافی ہے تمہارے لیے، محبت تمہارے نصیب میں نہیں لکھی گئی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی مٹھی میں دبوچا اور صفاقی سے کہا، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی تمہیں میری پرچھائیاں بھی ڈرائیں گی۔ اور پھر وہ رات شروع ہوئی تھی جو رات ختم نہ ہوئی، وہ گھڑی جو وقت کی ضربیں بھول گئی۔ اس نے مزاحمت کی، ہاتھ جھٹکے، پاؤں پیچھے ہٹائے، مگر وہ مرد جو طاقت کے زام میں تھا، ایک پنچایت کے فیصلے کے پیچھے چھپ کر ظلم کر رہا تھا۔ اسے رحم نہ آیا۔ وہ لڑکی جو ابھی کھیلنے کی عمر میں تھی، آج کسی مرد کی ملکیت بنا دی گئی تھی، ایک ایسی سزا کے بدلے جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے خود جسم چیخ چیخ کر مزاحمت کر رہا تھا۔ مگر شازیم کے لیے وہ فقط ایک انتقام تھی، ایک مجرم خاندان کی بیٹی جسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ دیوار پر آویزاں گھڑی بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ تبھی بجلی ایک دم سے چمکی اور نیچے لمحہ بھر کو کمرہ روشن ہوا۔ اس جھماکے میں اس معصوم کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا، اور شازیب کے چہرے پر وہ وحشت جو کسی درندے کے ماتھے پر ہوتی ہے۔ یہ بارش تمہیں اب بچا نہیں سکتی، کیونکہ یہ دروازے، یہ دیواریں، یہ سب میرے ہیں، اور اب تم بھی۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونجے جیسے کوئی حکم نامہ جاری ہوا تھا، اور اس معصوم کے قدم پیچھے ہٹے تھے۔ وہ بیڈ سے ٹکرا گئی تھی اور روتے روتے بیٹھ گئی تھی۔ باہر بارش اور تیز ہو گئی، جیسے خود اس کی لاچاری پر ماتم کر رہی تھی۔ شازیب نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی؟ تم ونی ہو، ایک سزا، میرے غصے کی، میرے زخموں کی۔ تم میرے بھائی کی قبر پر دیا جانے والا کفارہ ہو، اور میں وہ جلاد ہوں جسے پنچایت نے کھلی چھٹی دی ہے۔ اس لڑکی کی آنسیں آنسو رواں تھے، مگر اس بار وہ ساکت بیٹھی تھی، جیسے ہر احساس چھوڑ چکی تھی۔ باہر ایک بار پھر بجلی چمکی، کھڑکی کا پردہ پھڑ پھڑایا اور دور کسی بلی کے رونے کی آواز آئی تھی، جیسے وہ بھی بین کر رہی تھی۔ شازیب نے اس کی ساری مزاحمت کو کچل دیا تھا، اور اپنی جسمانی طاقت کے زور پر وہ اس کے وجود کو روننے لگا تھا، جیسے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھی
जिस पर वो बस अपना हक जता रहा था। उसकी आंखें छत पर जमी थी। वो कुछ नहीं बोली, चीखी नहीं और रोई भी नहीं। शायद वो लम्हा ही ऐसा था जहां अल्फाज खत्म हो जाते थे और अजियत सिर्फ अंदर टूट रही थी। शोर किए बगैर बारिश अब तेज हो चुकी थी। हवा से खिड़की के पट बजने लगे थे। बिस्तर की चादर जमीन पर गिर चुकी थी और दीवारों पर 2 साए लरस रहे थे और कमरे का सकूत चीख रहा था। वो रात खत्म हुई तो शाहजेब भी बिस्तर में लेट कर सो गया, लेकिन वो बेबसी से एक तरफ अपनी बेजान होते वजूद को लिए बैठी थी। जब सुबह पूरी तरह से तुलू हो गई तो हवेली का मुलाजिम भागता हुआ शाहजेब के कमरे में आया और उसे बताया कि जिस लड़की से उसका निकाह हुआ था ये वही नकाब पोश उम्मे कलसूम थी जिसे वो 3 महीने से ढूंढ रहा था। और तभी शाहजेब पत्थर हो गया था, क्योंकि सुबह का सूरज मशरिक से उभरता हुआ धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। गांव में हल्की सी खुनकी थी और फजा में ताज़ा मट्टी, धुएं और नीम के पत्तों की खुशबू रची बसी थी। किसान अपने बैलगाड़ियों के साथ खालों पर पानी छोड़ते खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। हर तरफ खामोशी के अंदर एक मसरूफ जिंदगी की लहर दौड़ रही थी। गांव के अंदर कीचड़ ज़दा पगडंडियों पर नंगे पांव बच्चे भाग रहे थे और बकरियां चारा चबाती गलियों से गुजर रही थी। उसी वक्त एक स्याह रंग की चमकती हुई लैंड क्रूजर कच्चे रास्ते पर गर्द उड़ाती दाखिल हुई थी। गर्द के बादल जैसे जमीन से उठकर आसमान को छूने लगे थे और सभी लोगों की नजरें उस गाड़ी पर जम गई थी। वो गाड़ी शाहजेब की जो थी, शाहजेब जिसके नाम से गांव की फिजा में सन्नाटा छा जाता था। वो जागीरदारों के उस खून से था जो जमीनों से दौलत तो खींच लाता था, मगर जमीन की मिट्टी को छूने से हमेशा गुरेज करता था। उसके बाप दादा ने दर्जनों एकड़ जमीनें छोड़ी थी और वो अब खुद को उन जमीनों का वारिस नहीं बल्कि मालिक समझता था। गाड़ी एक झटके से रुकी, दरवाजा खुला और शाहजेब उतर आया। लंबा कद, गंदुमी रंगत, साफ शेव और आंखों में वो गरूर जो नस्लों से विरसे में चला रहा था। वो सफेद कुर्ता शलवार और काली वास्केट में मलबूस था और उसके पीछे एक बॉडीगार्ड खामोशी से खड़ा था। शाहजेब ने आसपास का जायजा लिया। सामने खेतों में हरियाली लहरा रही थी, गेहूं की फसल झूम रही थी। दूर एक किसान हल चलाते शाहजेब की तरफ देखकर रुक गया और उसे सलाम किया था। शाहजेब ने सर हिलाया, जैसे बादशाह किसी गुलाम की मौजूदगी को तस्लीम करता है। ये खाल फिर लीक कर रहा है? उसने बॉडीगार्ड से पूछा। जी सर, एक मजदूर को कहा तो है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। शाहजेब ने आंखें सुकेड़ ली। ऐसे ही नुकसान होता है। मेरे बाप के वक्त में एक कतरा जाया नहीं होता था। वो अपने बाप के बारे में अक्सर ऐसे ही कहा करता था, गो कि वो खुद कभी खेत में नंगे पांव नहीं चला था, लेकिन एक जबानी अजमत की चादर हमेशा ओढ़े रखता। गाड़ी के करीब ही खड़ा गांव का नंबरदार लाला रहमत झाड़ियों से निकलता हुआ आया। उसके हाथ में कपड़ा था जिससे वो अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। अस्सलाम अलैकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम लाला, क्या खबर है? खबर तो वही पुरानी है। फसल अच्छी है लेकिन हुनरमंद हाथ कम हो गए हैं। शहर वाले सबको खींच के ले गए और अब मजदूर ढूंढना मुश्किल हो गया है। शाहजेब ने गहरी सांस ली। जब लोग जमीन से मुंह मोड़ लेते हैं तब बर्बादी शुरू होती है। जमीन माँ है, शहर सिर्फ नौकरियां देते हैं, जड़ें नहीं। ये जुमले शाहजेब अक्सर कहता था, हालांकि वो खुद शहर में रहता था, एयर कंडीशन कमरों में, और हफ्ते में 2 बार अपनी जमीनें देखने आता था। खेतों के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर वो बैठा हुआ था। करीब ही उसके लिए लकड़ी की आरामदेह कुर्सी बिछा दी गई थी और मुलाजिम चाय का थर्मस ले आया था। शाहजेब ने खेतों पर नजर दौड़ाई। धूप अब तेज हो रही थी और किसान अपनी गंदमी पेशानियों पर पसीना पोंछते झुके हुए काम में लगे थे। उनके हाथ मिट्टी में खोए हुए थे और जिस्म थकन से बोझल था, मगर उनकी आंखों में वही आजिज़ी थी। कभी उन जैसे हाथ मेरे पास भी होते थे। शाहजेब ने खुद कलामी की। ये जुमला सिर्फ वही जानता था कि क्या सच था। उसके बचपन की कुछ यादें थीं। खेतों में दौड़ना उसे अभी भी याद था, मगर वो यादें अब उसके वजूद से अलग हो चुकी थीं। अब वो सिर्फ एक किरदार था। शाहजेब, जमींदार और एक ताकतवर वडेरा। जब पसीना उसके माथे से बहने लगा तो वो वापस हवेली जाने के लिए उठ खड़ा हुआ।
शाहजेब की गाड़ी कच्चे रास्ते पर हचकोले खाती हवेली की तरफ रवां दवां थी। गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन की ठंडी हवा और अतराफ की वीरानी एक अजीब सी खामोशी को जन्म दे रही थी। शाहजेब ने गाड़ी के शीशे से बाहर झांका। दूर तक फैले खेत, सरकंडों की सरसराहट और दूर किसी चरवाहे की बांसुरी की आवाज उसे माजी के किसी धुंधले मंजर में ले गई। वो अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक एक धमाके से गाड़ी की ब्रेक चुरचुराई। गाड़ी के अगले शीशे से एक छोटा सा बकरी का बच्चा उछलकर गुजरा था और अगले ही लम्हे एक नकाब ओढ़े लड़की दुपट्टे को संभालती घबराहट से कांपती हुई गाड़ी के सामने आ गई। शाहजेब के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बमुश्किल गाड़ी काबू में रखी। लड़की की नजरें झुकी हुई थी, चेहरा सफेद नकाब में छुपा हुआ, लेकिन आंखों से झलकती सरासीमी की छुपी ना रह सकी। पागल हो गई हो क्या? अगर गाड़ी ना रुकती तो? शाहजेब गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला, मगर उसका जुमला दरमियान में ही रह गया था। लड़की ने बकरी के बच्चे को आगोश में उठा लिया था, जैसे वो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती शय थी। नकाब के पीछे छुपी आंखों में आंसू झलकने लगे, जो शाहजेब को कुछ पल के लिए साकित कर गए थे। माफ कीजिएगा शाहजी। उसकी आवाज नरम लरसती हुई मगर बावकार थी, जो शाहजेब को अपनी तरफ खींचने लगी। वो तो अभी उसकी आंखों के सहर से नहीं निकल पाया था कि उसकी आवाज भी इसके कानों में एक रस घोलने लगी। वो बेचारी डरी सहमी खड़ी थी, मगर शाहजेब की नजरें तो बस उसके गोरे हाथों पर ही टिक कर रह गई थी, जिससे उसने अपनी चादर के पल्लू को मुंह पर डाल रखा था। और फिर शाहजेब उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर वो डरकर वहां से भाग गई और शाहजेब वहीं खड़ा उसको दूर तक जाता देखकर मुस्कुराने लगा। और फिर वो अपना सर झटकता दोबारा गाड़ी में आ बैठा, मगर गाड़ी के बैक मिरर से उसकी नजरें अभी भी भागती हुई उस लड़की पर थी, जो अपनी आंखों से उसके दिल की घंटियां बजा गई थी। न जाने उस लड़की में ऐसा भी क्या था जो वो उसको देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ तो शारिक भागता हुआ आया और उससे लिपट गया। लाला, आज आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। क्या आज आपने मुझे बंदूक चलाना नहीं सिखाना था? वो शाहजेब से लेटा हुआ था और शाहजेब उसको साथ लेता हवेली के अंदरूनी हिस्से में चलाया था। लो भला, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने भाई से कोई वादा करूं और उसको पूरा ना करूं? शाहजेब ने खुशी से कहा। शारिक उसका छोटा भाई था और शाहजेब को वो दिलो जान से अजीज था, क्योंकि वो मासूम था। लेकिन शाहजेब उसको जमाने से लड़ने का हुनर सिखा रहा था। वो उसको अपने जैसा जालिम ही बनाना चाहता था, ताकि वो भी जमाने से डरने के बजाय जमाने से 2 कदम आगे चलता। मगर अम्मा ऐसा कहाँ चाहती थी। अरे ओ बेटा, रहने दे। मेरे एक बच्चे को तो जमाने की सख्तियों से दूर ही रहने दे। इसे ना अपना जैसा जालिम बना। अम्मा हमेशा शाहजेब को रोकती रह जाती, मगर वो कहाँ रुकता था। उसने एक बंदूक उठाकर अपने कंधे पर रखी और दूसरी शारिक के कंधे पर रखते उसे अपने साथ हवेली के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। उसे वो बंदूक चलाना सिखा रहा था और तभी उसकी कान में बकरी के बोलने की आवाज आई, जो हवेली के अगले हिस्से से भटकती हुई इस तरफ आ गई थी। बकरी की आवाज पर शाहजेब का ध्यान उस पर्दापोश लड़की की तरफ गया, जो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। लाला, क्या हुआ? किधर खो गए? शारिक ने शाहजेब को बंदूक से झंझोड़ा और जैसे वो एकदम होश में आया, और फिर हवेली के पिछले हिस्से से वक्फे वक्फे से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। शाहजेब इस बार लंबे अरसे के लिए गांव आया था, इसीलिए वो शारिक को भी इस बार बंदूक चलाना सिखाकर जाने वाला था, क्योंकि वो उसे भी जमींदारी सिखाना चाहता था। और ये भला कैसे हो सकता था कि शारिक को बंदूक चलाना ही ना आता? अगर उसे जिम्मेदारी करनी थी तो बंदूक चलाना भी लाजमी था, मगर शाहजेब नहीं जानता था कि बंदूक चलाने वाला किसी और की गोलियों का शिकार होने वाला था। अगले दिन शारिक शाहजेब को अपने साथ खेतों में ले गया, लेकिन तभी शाहजेब को शहर से एक जरूरी फोन आ गया, जिसकी वजह से उसे हवेली वापस जाना पड़ा। लेकिन वो शारिक को वहीं खेतों में छोड़ आया था। उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि शाहजेब के आदमी उसके साथ ही तो थे। और फिर शाहजेब को एक खबर मिली थी, जिस पर वो बौखलाता लड़खड़ाते कदमों से वापस खेतों की तरफ भाग रहा था।
उस वक्त शाजिब को कोई परवाह नहीं थी कि उसके कपड़े गंदे हो रहे थे। वो खबर ही ऐसी थी कि उसको कुछ समझ नहीं आया था। वो तो बस जल्द अज जल्द शारिक के पास पहुंच जाना चाहता था, जिसको 2 गोलियां लगी थी। क्या हुआ? कैसे तुम सब लोग किधर मर गए थे? नमक हरामों में तुम्हारे भरोसे इसको छोड़कर गया था। शाजिब ने शारिक को अपनी गोद में उठाया और साथ ही वो अपने आदमियों पर भी चिल्ला रहा था, मगर उस वक्त तक शारिक का बहुत खून बह चुका था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, लाला है ना, मैं बचा लूंगा तुम्हें। वो शारिक के खून से तर होते वजूद को अपनी गोद में लिए जैसे खुद को दिलासे दे रहा था। जल्दी चलाओ काम चोरों, जल्दी करो। साथ ही वो ड्राइवर पर भी चिल्ला रहा था, मगर गांव के कच्चे रास्ते पर गाड़ी आखिर कितनी तेज दौड़ती। इससे पहले कि वो शारिक को लेकर अस्पताल पहुंच पाता, उसके 22 साला भाई ने उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया। शारिक, आंखें खोल, आंखें खोल, देख तेरा लाला तुझसे कह रहा है, तू अपने लाला की बात नहीं मानेगा। वो शारिक के मुर्दा वजूद को पागलों की तरह झंझोड़ रहा था। उसको गोया यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई, जिसको वो बंदूक चलाना और निशाना लगाना सिखा रहा था, वो किसी और की बंदूक का निशाना बन गया था। शाहजी हौसला करें। सब उसे हौसला दे रहे थे, मगर वो किसी की सुन ही कब रहा था। मुझे वो अपने सामने चाहिए जिसने मेरे भाई का ये हाल किया है, और अगर वो मुझे ना मिला तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। वो एकदम गुस्से से उठा और उंगली उठाकर लाल होती आंखों से कहने लगा, मगर सब मुलाजिम हाथ बांधे सर झुकाए खामोश खड़े थे। शाजिब ने वो सारी जगह छान मारी थी जहां शारिक का वजूद उसे खून से लथपथ मिला था कि शायद उसे कोई सबूत मिल जाता जिससे उसके कातिल का पता लग सकता। और तभी एक एहसान भागता हुआ उसकी तरफ आया। शाहजी, अगर गुस्ताखी माफ करें तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। शाजिब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। छोटे शाह के बारे में। शाजिब का गुस्सा देखकर वो हाथ जोड़ते कहने लगा और शाजिब के कान खड़े हो गए। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? शाजिब ने असबात में सर हिलाया। जिस दिन छोटे शाह जी को गोली लगी थी, उस दिन मैंने ये बराबर के खेत से वली मोहम्मद के बेटे को डर कर भागते देखा था, और उसके हाथ में पिस्तौल भी था। और तभी शाजिब ने आंखों को गोल करते उसके एहसान को देखा और गुस्से से वहां से वली मोहम्मद के घर की तरफ चल पड़ा। ओए वली मोहम्मद, किधर है? किधर छुपाया है अपने बेटे को? मुझे पता लग गया है कि मेरे भाई को उसने कत्ल किया है। किधर है वो? वली मोहम्मद के कच्चे घर में दाखिल होते ही वो चीखने लगा, और तभी एक हांफता कांपता बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े उसके सामने आया। शाहजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा भला ऐसा क्यों करेगा? लेकिन शाजिब की आंखों में तो गुस्सा उतरा हुआ था। उसने वली मोहम्मद को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ा था। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं शाहजी, मुझ पर ये जुल्म ना करें। मेरी भला आपसे क्या दुश्मनी? मेरा बेटा तो 3 दिन से घर भी नहीं आया, और मैं नहीं जानता कि वो किधर है। 3 दिन हो गए तेरे बेटे को घर से भागे हुए, और तू कह रहा है कि तेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरे भाई को भी मरे 3 दिन हुए हैं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरे भाई को तेरे बेटे ने ही मारा है। क्यों मारा है ये मैं खुद पता करवा लूंगा। तू बस ये मालूम करवा कि वो किधर गया है, वरना तो तू मुझे जानता ही है कि मैं कौन हूं और क्या क्या कर सकता हूं। शाजिब ने एक झटके से वली मोहम्मद को धक्का देकर छोड़ा, लेकिन वो बेचारा उसके पांव पर गिर गया। शाहजी, वो मेरा इकलौता बेटा है, उसने ये सब नहीं किया। हम गरीब लोग हैं, हम पर तरस खाओ शाहजी। वली मोहम्मद उससे इल्तिजा कर रहा था। तेरे पास 2 दिन हैं, मुझे अपने बेटे का पता दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। शाजिब ने वली मोहम्मद को उंगली से तंबीह की थी और खुद ठोकर मारकर चला गया था। शाजिब वली मोहम्मद के घर से निकलकर सीधा अपने डेरे पर गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, हाथों में कपकपाहट थी और आंखों में वो इंतकाम की आग दहक रही थी जो सिर्फ भाई के खून की प्यास बुझाने से ही बुझ सकती थी। वो बार बार शारिक के मुर्दा वजूद को याद करता, जिसके जिस्म से बहता गरम गरम खून इसके हाथों को भिगो रहा था। एक भाई जो इसके सबसे करीब था, वो कैसे उसे भुला सकता था? उसके आदमी गांव के चप्पे चप्पे पर फैल चुके थे। हर चेहरे को पहचाना जा रहा था, हर किसान,
हर चरवाहा, हर औरत, हर बच्चा इस वक्त खौफ के साए में सांस ले रहा था। वली मोहम्मद का बेटा इकराम कहीं छुप गया था। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ था, लेकिन शाहजेब की नजरें सिर्फ एक चीज तलाश कर रही थी, इंसाफ या फिर बदला। इधर वली मोहम्मद के घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। उसकी बीवी आंखों में आंसू लिए बेटी के सर पर हाथ रखे बैठी थी। अब क्या होगा अम्मा? शाहजी तो कुछ भी कर सकते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। बस दुआ कर बेटी, वो तुझे अपनी अना की आग में ना झोंक दे, उसकी मां ने हिचकियों में कहा था। वली मोहम्मद ने नम आंखों से अपनी बेटी को देखा था। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दांव पर लगने जा रही थी और वो कुछ भी कर नहीं सकता था। गरीबों के मुकद्दर में शायद कुछ बचता ही नहीं। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन इकराम का कुछ पता ना चल सका और फिर फैसले का दिन आ गया। शाहजेब ने वली मोहम्मद को बुला भेजा था और पूरे गांव को जमा कर लिया था। जिरगा बिठाया गया था। शाहजेब अपनी कुर्सी पर बैठा, माथे पर सन्नाटा और निगाहों में तूफान लिए वली मोहम्मद को देख रहा था, जबकि गरीब वली मोहम्मद हाथ जोड़कर खड़ा था। तूने बताया नहीं, कहाँ छुपाया है अपने लड़के को? शाहजेब ने पूछा। वली मोहम्मद ने सर झुकाकर कहा, नहीं शाहजी, मुझे नहीं मालूम कि वो किधर है। मैंने उसे नहीं छुपाया। मुझ पर रहम करें, मेरा यकीन करें। वो सब गांव वालों के सामने रोने लगा था। अच्छा तो ये बात है, तो फिर सजा के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरी खामोशी ही तेरी सजा है। जिरगे के एक बुजुर्ग ने बच बचाव की कोशिश करना चाही थी। शाहजी, हो सकता है लड़का किसी और के कहने पर यहां से फरार हुआ हो, या हो सकता है वो किसी और वजह से गांव से भागा हो। शाहजेब ने जहर खन मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे भाई के कातिल के लिए मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो इंसाफ चाहिए, और अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपना इंसाफ खुद ले लूंगा। और मेरे एक आदमी ने खुद देखा था इकराम को वहां से भागते, जिधर मेरे शारिक की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। शाहजेब ने उस किसान का जिक्र किसी के सामने नहीं किया था, और उसी लम्हे शाहजेब ने एक ऐसी बात कही थी जिसने वली मोहम्मद की दुनिया ही बदल दी, और साथ ही सब लोग भी हैरत से शाहजेब को देखने लगे। तेरा बेटा नहीं मिला ना, लेकिन मुझे तो इंसाफ चाहिए। चल, तेरा बेटा ना सही, बेटी ही सही, तू अब मुझे अपनी बेटी देगा, वन्नी करेगा उसे। तू अपनी बेटी की सूरत में मेरे भाई की जिंदगी का मोल लेगा। और फिर गांव में सन्नाटा छा गया। वली मोहम्मद को लगा जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। उसने हाथ जोड़ दिए, ना शाहजी, मेरी बेटी का क्या कसूर है? जितना तेरे बेटे का है। शाहजेब का लहजा जहर आलूद था। शाहजी, मुझ पर रहम करें, बेटे का मुझे कुछ नहीं पता कि वो किधर है। अब एक बेटी ही बची है मेरे पास, खुदा के लिए मुझ पर यह जुल्म न करें। वली मोहम्मद ने उसके पांव पकड़ लिए थे, मगर शाहजेब तो अपना फैसला सुना चुका था। वली मोहम्मद रात भर रोता रहा, लेकिन उसकी बेटी शायद बहादुर थी। वो उसके सामने बैठ गई थी। शायद वो अपने बाप की आंखों में वो अजाब देख चुकी थी जो किसी सूरत टल नहीं सकता था। अब्बा, मैं राजी हूं। उसकी इस बात पर वली मोहम्मद ने चौंक कर बेटी की तरफ देखा। तू जानती है ना वो कौन है? वो तेरे साथ क्या सलूक करेंगे? मुझे पता है अब्बा, लेकिन अगर मैं न गई तो वो शायद सबको मार डालेंगे। मैं आपको और अम्मा को उनके गुस्से से बचाना चाहती हूं। वली मोहम्मद अपनी बेटी के कदमों में गिर गया था। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। और फिर अगले ही दिन रस्म और रिवाज के मुताबिक उम्मे कलसूम को वन्नी करके शाहजेब के डेरे पर भेज दिया गया। वहां पर किसी शादी की तकरीब जैसा हंगामा नहीं था, बल्कि सिर्फ खामोशी थी, मातम था और एक बेटी की कुर्बानी थी। शाहजेब ने निकाह के बाद उम्मे कलसूम को देखना तक गवारा ना किया, बल्कि उसने तो उसे नौकरानियों के साथ एक कमरे में रख दिया। फिर भी उसने एक लफ्ज तक ना कहा। उम्मे कलसूम, वो तो बस एक मुजरिम की तरह वहां रह रही थी, जिस पर जुर्म भी साबित ना हुआ था। चंद हफ्ते गुजर गए थे। उम्मे कलसूम शाहजेब के घर में मौजूद थी, लेकिन उसके लिए जैसे हवेली के सभी दरवाजे बंद थे। कोई उसे बात तक ना करता था। नौकर भी उसे देखकर आंखें फेर लेते थे, क्योंकि सब जानते थे कि वो वन्नी होकर आई थी। शाहजेब उसे मुजरिम की निशानी समझता था।
हर रोज एक नया सूरज तुलू तो होता था, मगर उम्मे कलसूम के लिए हर दिन अंधेरी रात जैसा होता था। वन्नी के बाद वो शाहजेब की बीवी तो थी, मगर सिर्फ कागज पर, एक सजा के तौर पर। हकीकत में तो वो इस हवेली की बाकी मुलाजमों जैसी ही थी, जो किसी और के गुनाह की वजह से दीवारों में कैद कर दी गई थी। उसे दिन चढ़ते ही जगा दिया जाता था। हवेली की बाकी नौकरानियां उसे वो काम देती जो दूसरे मुलाजमों के करने के काबिल ना होते थे, और शाम तक उसके हाथों की नरम खाल छिल जाती थी। वन्नी होकर आई है ना, अब यही मुकद्दर है इसका। नौकरानियों के जहरीले जुमले उसके कानों में सीसे की तरह गिरते थे। शाहजेब ने निकाह के बाद उम्मे कलसूम की शक्ल तक ना देखी, बल्कि उसके दिल में बस एक ही बात थी कि वो लड़की उसके भाई की कातिल की बेटी थी, और वो अपने भाई के हिस्से की सजा ही काट रही थी। जब वो कभी गलती से शाहजेब की माँ की राह में आ जाती तो रुकैया बानो की आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलगने लगती। दफा हो जा सामने से, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही मुझे मेरे कमसिन बेटे की लाश देखनी पड़ी। मेरा तो बस नहीं चलता मैं तुझे भी मार दूं, मगर वो तो तेरे लिए बहुत मामूली सजा होगी, इसलिए तू सारी जिंदगी इसी हवेली में सजा काटेगी। लेकिन उम्मे कलसूम वो सारी बातें सुनकर सिर्फ सर झुका लेती। उसके दिल में तूफान होता, मगर लबों पर कभी शिकायत ना आती। एक दिन रुकैया बेगम ने उसके सबके सामने थप्पड़ मार दिया। देखो तो सही, कातिल की बेटी मुझे पानी देने आई है। कमबख्त, मेरे बेटे को मारने वालों के घर की लड़की आज हमारी हवेली में। दफा हो जा तू मेरे सामने, ना ही आया कर तो अच्छा है। उम्मे कलसूम की गाल पर हाथ का निशान उभर गया था, मगर वो सिर्फ खामोश रही थी। कोई भी उसके साथ नहीं बैठता था। अगर वो कभी काम करते थक जाती तो भी बाकी नौकरानियां उसे यही कहती थी कि तू यहां नौकरानी बनकर नहीं आई, सजा भुगतने आई है। याद रख, इसीलिए इधर आराम न कर, उठकर काम कर। अगर कभी वो आंखें बंद करती तो अम्मा की आवाज सुनती, बेटी अगर दुख ना झेलती तो शायद हमारा सब कुछ लुट जाता। वो माँ की मजबूरी, बाप की बेबसी और अपने मुकद्दर को हर रात आंखों के आंसुओं से धोती थी। एक दिन वो शदीद बुखार में थी, मगर किसी ने उसे दवा तक ना दी थी। नौकरानियों ने हंसी में ही उसे कहा था कि वन्नी होकर आई है, खुद ही भुगतेगी, ये तो इसके लिए कम है जो इसके भाई ने किया। वो रात उसने पिछले सहन में सर्द जमीन पर गुजारी थी। होंठों पर कपकपाहट और दिल में बस एक दुआ थी कि या अल्लाह, मैं बेकसूर हूं, मेरे रब मेरा कोई तो हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी उसके लिए कितनी बड़ी कयामत आना बाकी थी। जब एक दिन शाहजेब को शारिक की याद बेतहाशा सताने लगी और उसे इस वन्नी होकर आई लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो इतने सुकून से हवेली में क्यों रह रही थी। तभी उसने तारा को बुलाया था कि उस हवेली की सबसे पुरानी मुलाजमा थी। उस वन्नी होकर आई लड़की को आज दुल्हन बनाओ और मेरे कमरे में भेजो, वो गुस्से से बोला, और तारा जी बेहतर शाहजी कहते वहां से चली गई। चल ए लड़की, शाहजी का हुक्म आया है, तुझे उनके सामने पेश होना है। तारा ने उम्मे कलसूम को एक सादा सा लाल सूट दिया था, क्योंकि वो खुद भी तो मुलाजमा ही थी। वो भला इस वन्नी होकर आई लड़की के लिए दुल्हन के नए कपड़े कहां से लाती। और उम्मे कलसूम के ऊपर तो गोया शाहजेब का नाम सुनकर ही कयामत टूट पड़ी। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। वो शाहजेब का नाम सुनते ही एक कोने में सिमट गई। ए लड़की, मैं तुझसे तेरी मर्जी नहीं पूछ रही कि तू क्या चाहती है, बल्कि मैं तुझे शाहजी का हुक्म सुनाने आई हूं। चल जल्दी कर, वरना तेरे साथ साथ मेरी भी शामत आएगी। तारा ने वो कपड़े उठाकर उम्मे कलसूम के मुंह पर दे मारे। तारा के कदमों की चाप तो जा चुकी थी, मगर उम्मे कलसूम की समातों में शाहजेब का नाम गूंज रहा था। उसने खुद को आईने में देखा, एक लाल जोड़ा जो दुल्हन के नाम पर उसके लिए मौत का परवाना था। वो ना सजी ना संवरी, उसके नाजुक होंठ सर्दी से फटे हुए थे, आंखें रो रो कर सूजी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, और बुखार की कमजोरी अलग थी। किसी की बीवी होना शायद हर लड़की का ख्वाब होता है, मगर उम्मे कलसूम के लिए वो ख्वाब एक खूनी ताबीर में बदल चुका था। तभी दरवाजा बजा और दो नौकरानियां अंदर आईं। चल,
शाजी के कमरे में लेकर जाना है तुझे। एक ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा था। मैं नहीं जाऊंगी। वो अपना बाजू छुड़ाकर भागकर दीवार से जा लगी। चल, या तो खुद जा या फिर हम घसीट कर ले जाएंगे, ज्यादा ड्रामेबाजी न कर। अब दूसरी ने गुस्से से बाजू पकड़ा। वो लड़खड़ाती हुई कदम घसीटती शाहजेब के कमरे की तरफ चल पड़ी। शाहजेब का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक दिए की रोशनी जितना बल्ब था जो इस वक्त कमरे में जल रहा था। और फिर वो रात शुरू हुई जो ना जाने कितनी लंबी थी। शायद वो रात उम्मे कलसूम के लिए सदियों के बराबर थी। उसको उसके भाई के किए की सजा भुगतना पड़ रही थी और वो माही बेआब की तरह तड़पती रही थी, मगर शाहजेब उस पर जरा भी तरस नहीं खा रहा था। वो रात खत्म हुई तो शाहजेब की हवीस भी कम हुई थी और उसका दुख भी। उसके दिल के किसी कोने में सुकून की चादर ओढ़कर खामोश हो गया था। शायद उसको इस बेकसूर लड़की को रौंद कर सुकून मिल गया था, तभी तो वो भी बिस्तर में लेटकर सो गया। लेकिन वो बेबसी से एक तरफ अपने बेजान होते वजूद को लिए बैठी थी। और तभी सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, मगर वो टस से मस ना हुई। उसका वजूद बिखरा हुआ था और वो उसे समेटने की कोशिश भी ना कर रही थी, बल्कि चुपचाप एक कोने में बैठी थी। जब सुबह पूरी तरह से तुलू हो गई तो हवेली का मुलाजिम भागता हुआ शाहजेब के कमरे में आया। ये वही मुलाजिम तो था जो उसका सबसे करीबी था और ज्यादातर शाहजेब के साथ ही होता था। शाहजेब ने उसे कई बार इस लड़की का जिक्र किया था जो एक दो बार अपने बकरी के बच्चे को बचाने उसकी गाड़ी के सामने आई थी और इसके दिल को बेचैन कर गई थी। अगर शाहजेब खुद उसके बारे में गांव में मालूम करवाता फिरता तो ये तो शायद शाहजेब की गैरत के खिलाफ था, ना कि वो एक मामूली लड़की को गांव में सिर्फ इसीलिए ढूंढता फिर रहा था कि इसका उस लड़की पर दिल आ गया था। तो तभी उसने उस लड़की को ढूंढने का काम गफूरे को दिया था जो उसका भरोसे का आदमी था। और वो सुबह ही सुबह शाहजेब के दरवाजे की चौखट पर खड़ा था, सिर्फ उसे ये बताने के लिए कि जिस लड़की से उसका निकाह हुआ था वो तो वही नकाबपोश उम्मे कलसूम थी जिसे वो 3 महीने से ढूंढ रहा था। और तभी शाहजेब पत्थर हो गया, क्योंकि उसने सारी रात जिस लड़की के जिस्म को नोचा था उसके चेहरे तक को तो देखना उसने गवारा नहीं किया था। अगर उसने एक पल के लिए भी उसका चेहरा देखा होता तो वो उसे जरूर पहचान लेता, क्योंकि उसकी आंखों में ही तो वो डूब गया था। मगर अब वो क्या करता? वो तो उस लड़की से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा था। शाहजेब ने दीवार का सहारा लेते खुद को संभाला। गफूरा अब भी सामने खड़ा था, नजरें झुकाए, उसके लब सिले हुए थे। हवेली की दीवारों पर तेज धूप की जर्दी पड़ रही थी, मगर शाहजेब को लगा जैसे उसके अंदर सब कुछ तारीक हो चुका था। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज में लर्जिश थी। वो जो हर किसी पर धाड़ता था आज उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। जी, वही है नकाबपोश जिसे आप 3 माह से ढूंढ रहे थे, वही लड़की उम्मे कलसूम। वो अपने वली मोहम्मद की बेटी थी। गफूरे की आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। शाहजेब दीवार से अलग हुआ और तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा, जहां वो लड़की कैद तो नहीं थी, वो तो अब उसके निकाह में थी, उसकी बीवी। मगर वो लफ्ज उसे काटने लगा था। कमरे का दरवाजा हल्की सी चुरचुराहट के साथ खुला तो अंदर वही खामोशी, वही सन्नाटा और कोने में बैठी उम्मे कलसूम, जो अब भी जमीन पर नजरें जमाए बैठी थी। उसके गिर्द चादर का हल्का सा साया था, मगर उसके चेहरे की जर्दी, सूजे होंठ और बाजू पर नील उस पर गुजरे तूफान की चुगली खा रहे थे। शाहजेब की नजर उसके चेहरे पर जा ठहरी। ये वही आंखें थी जिनमें उसने एक बार ख्वाब देखे थे, मासूमियत की रोशनी। लेकिन अब वही आंखें बुझी हुई, बेजान और खाली थी। कलसूम, उसके लबों से निकला जैसे कोई अजियत ज़दा पुकार रहा हो, मगर कलसूम ने सर भी ना उठाया। मुझे मालूम नहीं था अब वो क्या कहता। कौन सा लफ्ज था जो उसके जुल्म का मदावा कर सकता था? कौन सा जुमला था जो उसकी बर्बरियत को धो सकता था? मैं तुमसे माफी मांगता हूं। वो जमीन पर बैठ गया, उसके करीब, मगर एक फासला रखते हुए। वो काफी देर उसके सामने हाथ जोड़े, नजरें झुकाए बैठा रहा। वो जिसकी कभी गर्दन झुकी नहीं थी, आज वो उसके सामने अपना सर झुकाए, हाथ जोड़े बैठा, उससे माफी मांग रहा था।
مگر وہ بالکل خاموش تھی، اور جب بولی تو صرف اتنا، اب کیا فائدہ؟ اس کا ہر لفظ نوکیلا تھا۔ شاہ جی، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ میرے ان سب زخموں کو معافی سے مٹا سکتے ہیں؟ کیا میری ٹوٹی عزت کو آپ کی شرمندگی جوڑ سکتی ہے؟ اور شاہ زیب بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ طاقتور ہے، سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر آج اسے ایسے لگا جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ جس لڑکی کو وہ 3 مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اس کو اپنا بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ تو اس کے سامنے تھی، مگر اس نے تو اس معصوم کو ایک ایسے گناہ کی سزا دی تھی جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم جہاں چاہنا چاہو جا سکتی ہو، میرے نکاح سے بھی نکل جاؤ گی۔ اور پھر کلثوم کی ہنسی کمرے میں گونجی، مگر وہ ہنسی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ آزادی؟ اس نے طنز سے دہرایا۔ آپ جیسے لوگ صرف جسموں کو قید نہیں کرتے، روحوں کو بھی زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں۔ آپ ہی تھے نا جس نے مجھے ونی بنا کر اپنی انا کو تسکین دی تھی، اور اب جب جان لیا کہ میں وہی لڑکی ہوں جسے آپ نے اس روز سڑک کنارے دیکھا تھا، میں تو آپ کی آواز سن کر کانپ گئی تھی، مگر کل رات… شاہ زیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اٹھا، لرزتے قدموں سے باہر نکل آیا۔ وہ جو کچھ کر بیٹھا تھا وہ تو خود سے بھی نظریں چرا رہا تھا۔ اس کو اپنے بھائی سے محبت تھی، بہت تھی، مگر وہ اس لڑکی کو بھی وہ سزا نہیں دے سکتا تھا جو بے قصور تھی، جس کا ان سب سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، مگر وہ اس کو اپنی نفرت کا، ہوس کا نشانہ بنا چکا تھا۔ وہ پوری حویلی میں غصے سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس غلطی کا مداوع کیسے کرتا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور وہ حویلی کے اس حصے کی طرف بھاگا جہاں پر حویلی کے سب ملازم رہتے تھے، اور تب اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک کونے سے لگی بیٹھی تھی۔ ہاں، وہی آنکھیں تو تھیں جن پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا تھا کہ وہ اس کو پہچان کیوں نہیں پایا۔ آخر وہ اپنے غصے میں اس حد تک کیسے گر سکتا تھا؟ اب وہ آگے بڑھا اور ہمت کر کے اس نے کلثوم کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے لگا۔ سب کی نظریں شاہ زیب پر جم گئی تھیں۔ پھر سب نے یہی سوچ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ لڑکی ونی ہو کر آئی ہے۔ شاید شاہ زیب اپنے بھائی کا سارا غصہ اس پر اتارنا چاہتا تھا، اسی لیے تو اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، مگر وہ کلثوم کا ہاتھ تھامے سیدھا اس کو رقیہ بیگم کے سامنے لے آیا۔ آپ اس لڑکی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتی، یہ میری بیوی اور اس حویلی کی عزت ہے۔ رقیہ بیگم کے ساتھ ساتھ کلثوم نے بھی حیرت سے شاہ زیب کو دیکھا تھا، جو اماں کے سامنے اس کے حق میں بول رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، بلکہ یہ اس گناہ کی سزا ہے جو میرے بیٹے پر ڈھایا گیا تھا۔ اور تم بھول گئے ہو کیا کہ اسے یہ سزا بھی تم نے ہی سنائی تھی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ میں ہرگز بھی یہ نہیں قبول کروں گی کہ حویلی کی ہی ایک ملازمہ کو تم اپنی بیوی کا درجہ دو۔ اور تبھی کلثوم نے اپنا ہاتھ شاہ زیب کے ہاتھ سے چھڑایا تھا اور واپس جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر شاہ زیب نے لپک کر ایک بار پھر اسے تھاما۔ اماں، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، میں نے اس سے نکاح کیا تھا اور پورے گاؤں کے سامنے کیا تھا۔ اگر اس کے بھائی نے کوئی گناہ کیا تھا تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ ہم اس کے بھائی کے جرم کی سزا اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ میں مزید یہ ناانصافی برداشت نہیں کروں گا۔ آج وہ شاہ زیب اپنی ماں کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس نے کبھی کسی کی ایک نہیں سنی تھی، جو ہمیشہ ظلم کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اب ظلم کے راستے میں اس کی محبت تھی۔ وہ بھلا ایسے کیسے ہونے دے سکتا تھا کہ ایک لڑکی جو اس کے بھائی کے قتل کے بدلے اس کی حویلی میں ملازمہ بن کر آئی تھی، وہ تو وہی لڑکی تھی جس سے وہ محبت کر بیٹھا تھا، اور اب وہ اس کو سچ میں اپنانا چاہتا تھا، اپنے بیوی کا درجہ دینا چاہتا تھا، اور اس کو حویلی کی عزت بنانا چاہتا تھا۔ مگر اب اس کے سامنے ایک نیا مسئلہ تھا۔ اس کی ماں اس ملازمہ کو اپنی بہو کی شکل میں کسی بھی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ رقیہ بیگم کی سخت
کٹی ہوئی آنکھیں شاہزیب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی زبان بند کر دینا چاہتی تھی۔ کلثوم کا ہاتھ اب بھی شاہزیب کی گرفت میں تھا، مگر اس گرفت میں کوئی جبر نہیں، بلکہ اب ایک تحفظ تھا، ایک وعدہ کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ رقیہ بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے جس نے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، میرے لخت جگر کو مار دیا، اس کے لیے تم اپنی ماں سے لڑ رہے ہو، جس کے بھائی نے تمہارے سگے بھائی کا خون کیا؟ اس کے لیے کیا تم اپنے بھائی کی موت کو بھول گئے؟ شاہزیب نے لب بھینچ لیے۔ وہ اپنے بھائی کو نہیں بھولا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اماں، میں یہ سب اپنے لیے کر رہا ہوں، اس لڑکی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اسے صرف اپنے زخموں پر مرہم بنانے کے لیے قربانی بنا دیا۔ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا اس سے میرا شارک واپس آ جائے گا؟ نہیں، یہ انصاف نہیں، یہ بدنامی ہے۔ رقیہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس گاؤں میں ہماری عزت ہے، مقام ہے۔ تم نے اس ملازمت سے نکاح کر کے اور اب اسے اپنی بیوی کا درجہ دے کر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ نہیں اماں، میں نے اپنے دل کی آواز سنی ہے، میں نے ایک لڑکی کو انسان سمجھا ہے، نہ کہ ایک ونی، اور اب اگر وہ میری بیوی ہے تو اس کا مقام وہی ہے جو میری ماں یا بہن کا ہے۔ یہ الفاظ سن کر رقیہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے شاہزیب کو اپنے قابو میں رکھتی آئی تھی، مگر آج پہلی بار بیٹے نے انکار کر دیا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کے لیے جو کل تک ان کے پاؤں میں بیٹھی تھی۔ میں اسے کسی صورت اس حویلی کا حصہ نہیں بننے دوں گی، سن لیا تم نے؟ تو پھر ٹھیک ہے اماں، اگر آپ کو میری خوشی سے تکلیف ہے تو میں بھی یہ چھت چھوڑ دوں گا، جس کے نیچے میری محبت کے رہنے کے لیے جگہ نہیں اور اس کی توہین ہو رہی ہے۔ اور تب رقیہ بیگم کا دل پگھل گیا۔ وہ اپنے ایک بیٹے کو تو کھو ہی چکی تھی، اب دوسرے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رقیہ بیگم کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو نمی تیر گئی۔ شاہزیب کی باتوں میں وہ سچائی تھی جو ایک ماں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وہ بیٹے کو خالی ہاتھ، آنکھوں میں ضد لیے کھڑے دیکھ رہی تھی، جس نے اپنی ساری ضد اور انا ایک لڑکی کی عزت کی خاطر چھوڑ دی تھی۔ ان کے دل کے اندر کوئی بند دروازہ کھل رہا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، رک جاؤ۔ ان کی آواز ٹوٹی ہوئی نکلی، مگر وہ کافی تھی شاہزیب کو روکنے کے لیے، اور پھر وہ پلٹا، کلثوم کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی شاہزیب، رقیہ بیگم نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اگر شارک نہیں لوٹ سکتا تو کم از کم میں اپنا دوسرا بیٹا کھو کر خود کو اور برباد نہیں کر سکتی۔ شاہزیب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ کلثوم کا دل دھڑکنے لگا۔ رقیہ بیگم نے نظریں کلثوم پر گاڑ دی، وہی نظریں جو برسوں سے کسی کو کمتر سمجھنے کی عادی تھی، آج ان میں پہلی بار نرمی تھی۔ تم نے میرے بیٹے کے دل میں اپنا مقام خود بنایا ہے، میں تمہیں دل سے تو نہیں، رسم سے بہو مان لوں گی۔ شاہزیب نے کلثوم کی طرف دیکھا جو آنکھیں جھکائے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دوپٹے کے پلو میں جذب ہو رہے تھے۔ رقیہ بیگم آگے بڑھی، آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، اب سے یہ حویلی ہی تمہارا گھر ہے، بس ایک وعدہ کرو، میرے خاندان کی عزت کی لاج رکھو گی۔ میں صرف یہ اپنے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اور اس بیچاری کلثوم نے سر ہلا دیا۔ اس کے وجود پر سے ایک صدیوں کا بوجھ جیسے اتر گیا تھا۔ وقت جیسے نئی رفتار سے چلنے لگا تھا۔ گاؤں میں چرچا عام تھا کہ حویلی میں پہلی بار ایک ونی اپنی عزت منوا کر بہو بنی تھی۔ لوگ حیران بھی تھے، متاثر بھی، اور یوں وہ صرف شاہزیب کی بیوی نہیں، پورے علاقے کے لیے ایک مثال بننے لگی تھی۔ رقیہ بیگم ابتدا میں خود کو روک کر رکھتی، مگر آہستہ آہستہ کلثوم کے کام، اس کی خدمت اور اس کا نرمی سے ہر دل کو جیت لینا، ان کا دل بھی پگھلا گیا تھا۔ اکثر وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی تھی کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے میں صرف ایک سزا سمجھتی تھی، جسے میں نے اپنے بیٹے کے بدلے حویلی میں لائی تھی۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھی، مگر اب سب خاموش تھی، کیونکہ حویلی کی رانی نے خود کلثوم کو مانا تھا، اور شاہزیب بھی اب وہ نہیں رہا تھا جو کبھی ظلم اور خاموشی کے درمیان بٹ کر جیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امن تھا،
اور ہاتھوں میں ایک ایسی محبت جسے اس نے کھونے کے بعد پایا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔